Hello everybody, I am Ritesh, the teacher of English grammar at Shakespeare in Hazaribagh. Once again today I am before you with new video. In this video I will explain you about cases of pronoun. In my last class I taught you about कॉमन रूल्स। यदि आप इनको अच्छे से समझना चाहते हैं केसेस ऑफ प्रोनाउन को, तो आपको सबसे पहले हमारे लास्ट वीडियो को देखना पड़ेगा जहां पे आप लोगों को कॉमन रूल्स पढ़ाए गए थे। यदि आप कॉमन रूल्स को अच्छे से समझ गए हैं तो आपको केसेस ऑफ प्रोनाउन में ज़रा सा भी प्रॉब्लम नहीं होंगे। आप देखेंगे कि हमेशा आप आई का प्रयोग करते हैं। मैं लड़का हूँ तो आई एम अ बॉय। यू हैव नो प्रॉब्लम लाइक अ सब्जेक्ट यू ऑलवेज यूज, बट यू नेवर थिंक अबाउट ऑब्जेक्ट, पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन, reflexive pronoun. These all things we need to think here, where we have to use these all things, because we don't know very well where we need to use these all things. That time we cannot say I know very well about grammar, because cases of pronoun is very important. That's why I'm teaching you before tense, because I know very well if in your tense if I do not if you do not read very well about cases of pronoun, that time in your tense you will face lots of problems. So before tense we have to know these all things. If you don't know very well about cases of pronoun, that time it is not possible to understand your tense in good way, because you all are the students of general competition. You want to do something in your life, you want to achieve something in your life. That's why I can see that we need to understand cases of pronoun and also tense. If you want to get good knowledge in tense, that time at first you have to understand about cases of pronoun, because in your tense you will find subject plus verb plus object like this. Then in your tense directly if I teach you what is subject and what is verb and what is object, if you do not know very well, and in your tense I write like a structure, subject plus v1 oblique v5 plus object. This is the structure of simple present tense, and with the help of these structures we can make any translations. You think like this, then it is not good, because ये बिल्कुल भी अच्छी नहीं है बब्बू। कारण यहाँ पे समझो, कारण यह है कि यदि आप सब्जेक्ट भी नहीं जानते हो, V1 भी नहीं जानते हो, V1 5 भी नहीं जानते हो, और ऑब्जेक्ट भी नहीं जानते हो, और डायरेक्टली आप चले जाते हो बनाने के लिए आई का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, वी का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यू का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, दे का ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं, राम का ऑब्जेक्ट क्या हो जाते हैं। यू डोंट नो वेरी वेल एंड डायरेक्टली you say here sir you have to teach here tense, and now in I have problem in tense sir, directly I will read here tense sir. So I can see that in your tense if I am going to teach you tense, and if you don't know very well about your subject verb object, that time it is not possible to get good knowledge in your tense. For this reason I am teaching you it first cases of pronoun. Before cases of pronoun I taught you common rules, because these all things we need to read here. If we don't know very well about cases of pronoun and you can say also common rules, that you will face a lot of problem in your tense. So here we can see that before tense we need to know these all things. So here we have to read here cases of pronoun. आप यहाँ पे देखिए कि मैं आई क्या है सब्जेक्टिव केस, आई का सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस क्या होते हैं मी, आई का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं माई प्लस नाउन, आई का पजेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं माइन, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है माई सेल्फ। तो यहाँ पे गौर कीजिएगा कि देखिए यहाँ पे माई सेल्फ लिखा हुआ है, और यहाँ पे देखिए कि आवर सेल्फ्स लिखा हुआ है। स्पेलिंग देखिए SELF, यहाँ पे स्पेलिंग देखिए SELVES, सेल्फ्स है। व्हाट्स द रीजन सर, व्हाई डिड यू राइट लाइक दिस सर? देखिए यहाँ पे आई जो है वो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है। यदि हमारे पास सब्जेक्ट हमेशा सिंगुलर आती है तो हमेशा हम सेल्फ लिखेंगे। यदि हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल आती है तो हमेशा मैं क्या लिखूंगा, सेल्फ्स लिखूंगा। तो बात समझ में आई कि सेल्फ और सेल्फ्स कब लिखते हैं शो, जब हमारे पास सब्जेक्ट प्लूरल हो तो सेल्फ्स लिखेंगे, और जब हमारे पास सिंगुलर हो तो सेल्फ लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट वी कैन सी हियर लाइक दिस ऑल स्ट्रक्चर। इफ आई आस्क यू व्हाट इज द, जैसे मैं यू का सब्जेक्टिव केस क्या है यू का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे योर प्लस नाउन, हिंदी क्या होंगे तुम्हारा या तुम लोगों का या फिर अपना। लाइक दिस यू हैव टू रिमेंबर नाउ। इफ यू डू नॉट रिमेंबर दैट टाइम इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट। सपोज दैट जैसे में क्या होते हैं ना, एक बच्चे से अगर पूछा जाए या मैं आप ही से पूछता हूं कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो बोलते हैं आई लव यू, बिना सोचे आप इसको बना देते हैं। कोई कौन सा रूल से बना, कहां से बना, यू डोंट नो वेरी वेल। लेकिन इसके जगह पे मैं कह दूं कि मैं अपने माता पिता से प्यार करता हूं तो क्या करेंगे, या फिर चलो ये भी बन जाएगा आई लव माई पेरेंट्स, क्योंकि
ये चलते ही रहता है। लेकिन यदि आ जाता है मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, तो मैं आप सच में करने लगोगे उन लोगों का क्या होता है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं तो तुम का क्या होता है, यू। अब यू ऑब्जेक्टिव रूप में यहाँ पे यूज हुआ है या सब्जेक्टिव रूप में यूज हुआ है, कैसे जाने, आप नहीं जानते हो, मैं जानता हूं। देखो स्ट्रक्चर बोलता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये यू जो यूज हुआ है वो ऑब्जेक्टिव केस में हुआ है। देखो यू का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यू का ऑब्जेक्ट यू होते हैं कि नहीं है, ये समझना पड़ेगा कि मेरा ये यू जो यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, और आई जो यूज हुआ है वो किस रूप में यूज हुआ है, सब्जेक्ट के रूप में। ये कौन डिसाइड करता है, ये हमारा सारा केसेस ऑफ प्रोनाउन। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कैन से, ये यदि आप जानते हैं तो आप ग्रामर आता सीख गए हैं। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर उन विद्यार्थियों लोगों को जो जनरल कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले, तो अब यहाँ पे आप आई लव यू लगा दिए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पे आ जाते हैं आई लव, मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, तो ये यू के जगह पे क्या लगाओगे आप, उन लोगों का ढूंढोगे, उन लोगों का इंग्लिश क्या होते हैं। तो देखिए दे में आकर, दे का ऑब्जेक्टिव क्या, तो देखो यहाँ पे उन लोगों को, मैं उन लोगों से या मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, तो यहाँ पे देखो देम, उन लोगों का क्या होंगे देम, तो आई लव देम। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी चीज़ों को, सारी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें हैं मैं सारी चीज़ों को पढ़ाऊंगा। तो अभी यहाँ पे देख लीजिए, लोग यहाँ पे आप ही देखिए, मैं यहाँ से यहाँ तक प्रोनाउन दिया, यहाँ पे एक नाउन घुस गया है। क्यों, नाउन का सब्जेक्ट नहीं होता क्या, सब्जेक्टिव केस में नाउन भी होती है, ऑब्जेक्टिव केस में भी नाउन होती है। तो राम का ऑब्जेक्टिव केस क्या होंगे, राम ही होंगे। अब पूछा जाता है आपसे कि राम का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे, तो राम्स प्लस नाउन होंगे। आपसे पूछा जाता है कि नहीं राम का पजेसिव प्रोनाउन क्या होंगे, तो राम्स होंगे। आपसे पूछा जाता है राम का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होंगे, तो हिमसेल्फ होंगे। अब सर हिमसेल्फ लिख दिया, सर यहाँ पे क्यों नहीं लिख दिया राम सेल्फ, सर नहीं बाबू ऐसा नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि राम सेल्फ एक कोई प्रोनाउन नहीं है, ये एक नाउन नहीं है, ये बात को समझ में रख, ये समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक चीज और समझो, राम के लिए अगर मैं कोई प्रोनाउन यूज करना चाहेंगे तो क्या यूज करेंगे, ही करेंगे, अदरवाइज सी करेंगे। तो लड़का है तो ही करेंगे। अब ही का क्या होता है, ही का देखो तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, हिमसेल्फ। इसीलिए मैंने राम के जगह पे देखो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में क्या यूज किया हूं, हिमसेल्फ। इन सारी चीजों को समझना पड़ेगा। मैं इन सारी चीजों को अभी जस्ट मैं एक्सप्लेन करूंगा एक एक करके। तो सबसे पहले आपका कर्तव्य क्या बनता है कि इन सारी चीजों को अपने नोट बुक में, नोट कॉपी में आप अच्छे से इसको अरेंज कर लीजिए, सारे वर्ड्स को अच्छे से राइट कर लीजिए, कॉमन रूल्स को भी राइट कीजिए, इसको भी राइट कीजिए, और इन सारी चीजों को याद करने की कोशिश कीजिए। यदि याद नहीं होती है तो आप फंस जाओगे। जैसे मैंने बताया ना कि मैं आपसे प्यार करता हूं तो आई लव यू, मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, मैं उन लोगों से प्यार करता हूं, वह हम लोगों से प्यार करते हैं, तो हम लोगों का क्या इंग्लिश क्या होगा, उन लोगों का इंग्लिश क्या होगा, तुम लोगों का इंग्लिश क्या होगा। ये सारी चीजों को जानने के लिए इस सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। मैं आपसे पूछूंगा सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, तो हर प्लस नाउन। मैं पूछूंगा सी का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्ष होते हैं। तो ये सारी चीजों को याद करना पड़ेगा। अब हम ही देख लो, आप मिलाइए, मैं यहाँ पे बोलते जाता हूँ, खुद से देखिए। अब हमसे पूछेगा कोई कि दे का ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, तो दे का ऑब्जेक्टिव वहां पे देखिए देम लिखा हुआ है कि नहीं, तो मैं अब वहां हिंदी क्या होते हैं, उन लोगों को। तो इस प्रकार से आप लोगों को जानना पड़ेगा। आप सी का ऑब्जेक्टिव को पूछेगा आप तो क्या बोलेगा, हर बोलेगा। उसका हिंदी क्या होते हैं सर, उसे होते हैं या उसको होते हैं। देखिए आप खुद लिखे हुए सी का उसे या उसको। तो ये सारी चीजों को जिस तरह से मुझे याद है उस तरह से आपको भी याद करनी है, क्योंकि यदि याद नहीं होती है तो मैं कैसे लिखाऊं। जैसे मैं उससे प्यार करता हूं तो आई लव हर करेंगे, क्योंकि लड़का से तो नहीं ना प्यार करते हो, अगर करते हो तो बोल देना आई लव हिम, है ना। तो यहाँ पे सोच लो। तो ये डिसाइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कर सकते हैं, एक ही वर्ड में समझ लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं कि क्या करना है शो। चलिए, तो केसेस प्रोनाउन में आपने देखा कि सब्जेक्टिव केस थे, वहां पे ऑब्जेक्टिव केस भी थे। तो सबसे पहले क्या था, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस, एंड सेकेंड ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां पे ध्यान से दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे आई का सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं, तो आई ने होते हैं आई। अब आई का हिंदी क्या होते हैं, फर्स्ट आई का हिंदी मैं। अब यहाँ पे देखो, तो आपसे अगर पूछा जाए एग्जाम्पल पे, मैं लड़का हूं, मैं विद्यार्थी हूं, चाहे मैं नेता हूं, कुछ भी लिख लीजिए, मैं नेता हूं, मैं नेता, तो क्या हो जाएंगे, आई एम अ लीडर।
मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं बताने वाला हूँ कि यहाँ पे ए का प्रयोग क्यों हुआ, क्योंकि मैं कॉमन रूल्स में बता चुका हूँ। जिन्हें भी प्रॉब्लम है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्यों लगा शो, अब यहाँ पे देखिए आई क्या है, आई एक सब्जेक्ट है। अब आई यहाँ पे मैं सिर्फ बताने आया हूँ कि सब्जेक्ट एक सेंटेंस में, एक वाक्य में सब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है, तो पहला होता है, सबसे पहले। इसलिए मैं बता, देख लो यहाँ पे आई एम अ लीडर, सबसे पहले कौन आया, आई, तो आई क्या हुआ, सब्जेक्ट। तो एक सेंटेंस में सब्जेक्ट का स्थान कहाँ है, पहले है। उसी प्रकार समझना हमें कि आई का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, आई का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बब्बू, आई का ऑब्जेक्ट मी होते हैं। हिंदी क्या होंगे इसे, मुझे। अब मुझे होते हैं, तो अब यहाँ पे ये समझना है, यहाँ पे ये समझना है कि मी का स्थान कहाँ है एक सेंटेंस में, एक वाक्य में मी का स्थान कहाँ है, मतलब ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ होता है। तो देखो, वह मुझे जानती है, वह मुझे जानती है ना, तो वह मुझे जानती है, तो क्या हो जाएंगे, सी नोज मी। अब देखो मी क्या है, आपका ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट क्या हुआ, एक सेंटेंस में, देखो एक सेंटेंस में, एक वाक्य में ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ है बाबू, सबसे लास्ट में है। तो आप समझ जाइए कि सब्जेक्ट, एक सेंटेंस में सब्जेक्ट है जो पहले आती है और ऑब्जेक्ट है जो लास्ट में आती है। बस सिर्फ प्लेसमेंट सीखना है आपको, और यहाँ पे कुछ नहीं सीखना है। आप यदि हमसे पूछना चाहते हैं कि सर यहाँ पे नोज कैसे लग गई, ये कैसे बन गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट कीजिए, क्योंकि मैं टेंस में ये सारी चीजों को बताऊंगा कि ये कैसे बन गया। लेकिन जो कॉमन रूल्स पढ़ चुके हैं उसको पता होगा कि ये कैसे बना है। इसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ सर, बट इसमें प्रॉब्लम हो गई। क्यों हो गई प्रॉब्लम, क्योंकि अभी मैं इसको पढ़ाया नहीं हूं। लेकिन अभी फिलहाल यहाँ क्या सीखना है सर, हमको सीखना ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का स्थान कहां है एक सेंटेंस में। तो आपने क्या सीखा कि एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का स्थान सबसे लास्ट में होता है और सब्जेक्ट सबसे पहले होता है। बात समझ में आ गई। चलिए इसी प्रकार आप लोग को सेकंड देख लीजिए। अब सेकंड में वी होते हैं, वी का हिंदी क्या होता है बब्बू, वी का हिंदी क्या होते हैं, हम लोग होते हैं। अब जब हम लोग होते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, फर्स्ट एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। तो हम लोग नेता हैं, हम लोग नेता हैं। अब हम लोग नेता हैं तो यहाँ पे देखिए नेता कौन है, हम लोग हैं। तो हम लोग का इंग्लिश क्या होंगे, वी आर। अब जब मेरा प्लूरल है तो क्या होंगे, लीडर या लीडर्स, लीडर्स होंगे। अब लीडर्स होंगे तो लीडर्स प्लूरल हुआ ना, मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है। मेरा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला भी नाउन क्या होंगे, प्लूरल होंगे। देखिए मेरा सब्जेक्ट यहाँ सिंगुलर, तो आने वाला नाउन क्या हुआ, सिंगुलर हुआ। इसलिए मैं पहले ही बता चुका हूं कि एक रूल्स, एस के साथ यस होंगे, पी के साथ पी होंगे, कभी भी यस पी नहीं होंगे, या फिर पी एस कभी नहीं होंगे। ये पी एस एस पी क्या होते हैं सर, एस मतलब सिंगुलर, सिंगुलर के साथ सिंगुलर, प्लूरल के साथ प्लूरल, सिंगुलर प्लूरल कभी नहीं होते हैं। पी एस प्लूरल सिंगुलर कभी नहीं होते हैं। जब भी होंगे सिंगुलर या तो प्लूरल। बात समझ में आ रही है, ये दोनों सही है। ये रूल्स को मैं बता चुका हूं कॉमन रूल्स में, एम आई राइट ना। यदि प्रॉब्लम होती है तो कॉमन रूल्स को जाके देखिए। अब यहां से हम लोग आगे बात करते हैं। अब यहां पे वी जो है वो क्या है, वी एक सब्जेक्ट के रूप में काम किया। ये प्लूरल सिंगुलर अभी हटा दीजिए। वी किस रूप में काम किया, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में। इसको नोट्स बनाइए, इसको जरूर लिखिएगा कि आई क्या सब्जेक्ट है, वी क्या है सब्जेक्ट है। अब इसी को देखिए, वी का क्या होते हैं, वी का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, अस होते हैं। हिंदी क्या होते हैं, हम लोगों को। एग्जाम्पल देखो, वह हम लोगों को जानती है, वह हम लोगों को जानती है। तो देखिए अब यहाँ पे हम लोगों को आ गया। अब वहां पहले क्या था, मुझे था। अब यहाँ पे समझना पड़ेगा। आप बोलोगे सर हम लोगों का इंग्लिश क्या होती है, तो याद करना पड़ेगा ना कि वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, अस, जिसका हिंदी क्या होता है, हम लोगों को। तो यहाँ पे बनाइए, फिर सी नोज, वह हम लोगों को जानते थे, सी नोज अस। अब ये देखो अस क्या है, ये ऑब्जेक्ट है। क्या सीख रहे हो यहाँ पे कि ऑब्जेक्ट हमेशा लास्ट में आती है। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए मैं क्लीन कर सकता हूं। आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तभी हम लोग सीख क्या रहे हैं, प्लेसमेंट सीख रहे हैं, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का। एक सेंटेंस में दोनों का स्थान कहाँ कहाँ होता है। अब यहाँ पे थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होती है, यू। अब जो है सब्जेक्टिव केस है, इसका हिंदी क्या होता है, तुम या फिर तुम लोग होते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, देख लीजिए जाके चार्ट में आपको मिल जाएंगे भाई। अगर यहाँ पे आते हैं तुम नेता हो, तो यहाँ पे देखो तुम नेता हो, तो नेता कौन है, यू। तो क्या हो जाएंगे, यू आर आ लीडर। अब देखो यहाँ पे, अब यू क्या है, सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट कहाँ आती है, पहले आती है। अब उसी प्रकार यहाँ पे आते हैं, यू का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं बाबू, यू का ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होते हैं। इसका हिंदी क्या होंगे, तुम्हें या फिर तुम लोगों को, है ना। अब यहाँ पे देखो थोड़ा सा, मैं, फर्स्ट एग्जांपल, मैं तुम्हें, अदरवाइज
तुम लोगों को जानता हूं। बना के देखो तो क्या हो जाएंगे? आई नो यू। अब यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से बनाते हुए हम लोग को चलना है। उसी तरह एक यहाँ पे 4 देखते हैं। 4 में क्या आ जाते हैं? ही आ जाते हैं। ही का हिंदी वाह। वहीं पे एग्जांपल लो फिर से, वह नेता है, वह नेता है। तो क्या हो जाएंगे? ही इज अ लीडर, ही इज अ लीडर। ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब उसी प्रकार ही का ऑब्जेक्ट क्या होंगे? ही का ऑब्जेक्ट हिम होते हैं। हिंदी क्या होते हैं? उसे या फिर उसको होते हैं। थोड़ा सा देखो, मुझे याद है, इसी कारण से मैं लिख रहा हूं ना आप लोग के सामने। तो इसी तरह से आप लोग को याद करके रखना है अच्छे से। अब आते हैं, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे अदरवाइज उसको जानता हूं। अब क्या करोगे यहां पे? तुम सो बताओ तो क्या हो जाएंगे? आई नो हिम, मैं उसको जानता हूं। अब हिम क्या है? ऑब्जेक्ट है। क्लियर? अब इसी तरह से आप लोग नहीं बना लीजिएगा, ही बन गए। अब सी भी बना लेंगे। यदि दिक्कत होता है तो रितेश सर हैं आप लोगों के साथ। तो यहाँ पे सिर्फ प्लेसमेंट सीखना था कि सब्जेक्ट का स्थान कहाँ पे है और ऑब्जेक्ट का स्थान कहाँ पे है। आशा करता हूँ कि आप बना लेंगे आगे। सी बच गए हैं, दे बच गए हैं। यदि कोई दिक्कत होती है तो आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आप हमसे जरूर कॉन्टेक्ट कीजिएगा कि सर मुझे प्रॉब्लम है, मैं जरूर बताऊंगा। चलिए अब बात करते हैं हम लोग थोड़ा सा पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा, ये समझना बहुत जरूरी है पजेसिव एडजेक्टिव। तो चलिए पजेसिव एडजेक्टिव के बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट में देखिए हो जाते हैं माई प्लस नाउन। अब इसका हिंदी क्या होंगे बब्बू? मेरा या फिर अपना। तो अभी फिलहाल अपना को छोड़ दीजिए, कारण क्या है कि अपना मैं बाद में बताऊंगा। अपना अभी मैं जब टेंस पढ़ाऊंगा तो अपना के बारे में चर्चा करूंगा। फिलहाल अभी अगर मैं अपना बताता हूं तो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएंगे, कारण क्या, वो उसका एग्जांपल मुझे टेंस से देना पड़ेगा, जो आपको टेंस में अभी नहीं पढ़ा रहा हूं। जिस दिन मैं टेंस पढ़ाऊंगा उस दिन में आप समझ जाएंगे। चलिए हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अब आगे। माई प्लस नाउन। माई प्लस नाउन क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव है। अब पजेसिव एडजेक्टिव है तो माई जो है, जितने भी पजेसिव एडजेक्टिव होते हैं वो हमेशा जब भी आते हैं तो अपने नाउन के साथ आते हैं। किसके साथ? नाउन के साथ। अब यहाँ पे एग्जाम्पल देखो, यहाँ पे फर्स्ट में मेरा भाई नेता है, अदरवाइज मेरा भाई लोग नेता है, अदरवाइज वह मेरा भाई है, अदरवाइज वे लोग मेरा भाई है। ये सेंटेंस सारा बना के देखो। अब यहां देखो, नेता कौन है? बोले थे ना हु से क्वेश्चन करने के लिए। हु का मीन्स हिंदी कौन, तो मेरा नेता कौन है? मेरा भाई। तो मेरा भाई कौन सा पर्सन में है? भाई कितना है? एक है। देखो यहाँ पे भाई लोग, जब भी भाई के बाद लोग लग जाएगा, भाई नहीं, जब भी नाउन के बाद लोग लगेगा, नाउन के बाद लोग लगना चाहिए तो वो प्लूरल बन जाता है। तो यहाँ पे लोग लगा हुआ है क्या? नहीं, इस कारण से ये प्लूरल नहीं हुआ, सिंगुलर हुआ। नेता कौन बनेगा? नेता कौन है? मेरा भाई। तो मेरा भाई कौन सा पर्सन में हो गया? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है मतलब प्रेजेंट है, तो यह क्या लगेगा? वाज या इज लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे? मेरा भाई का इंग्लिश माई ब्रदर। देखो यहाँ पे एक चीज, माई प्लस नाउन, माई आया तो इसके साथ नाउन आया। माई को कभी भी जिंदगी में अकेला नहीं आएगा क्योंकि उसको बहुत डर लगता है। इस कारण से कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव जब भी आते हैं तो नाउन के साथ आते हैं। तो माई ब्रदर थर्ड पर्सन सिंगुलर तो इज लगेगा। तो मेरा नेता कौन है? नेता कौन है? मेरा भाई। मेरा भाई क्या है? नेता है। तो मेरा भाई नेता है तो कितना मेरा भाई है? एक है। तो नेता कितना होगा? एक ना। तो माई ब्रदर इज अ लीडर। इज दैट क्लियर ना? अब यहाँ पे देखिए, मेरा भाई लोग नेता है तो नेता कौन है? मेरा भाई लोग। मेरा भाई लोग मतलब एक से ज्यादा है। माई ब्रदर या ब्रदर्स? ब्रदर्स। यस लग जाएगा। जब ये लग गया, कौन सा पर्सन में चला गया? थर्ड पर्सन के प्लूरल में। जब ये थर्ड पर्सन के प्लूरल में चला गया तो क्या लगेगा? आर लगेगा। अब आर लगेगा तो देखिए, जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला नाउन भी क्या होंगे? प्लूरल होंगे। लीडर, यस लग जाएंगे तो ये प्लूरल बन गया। देख लो यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर था तो ये भी सिंगुलर हुआ कि ना? आ लीडर क्या है? सिंगुलर नहीं है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में चला गया वो। मेरा भाई लोग, देखो प्लूरल हो गया थर्ड पर्सन के प्लूरल में, तो ये भी चला गया थर्ड पर्सन के प्लूरल में। नेता
यस लग गया तो थर्ड पर्सन प्लूरल में हो गया ना जी। अब देखते हैं वह मेरा भाई है। अब यहाँ पे कुछ अलग देखो, ये अभी तो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा था, अब सब्जेक्ट के रूप में ये काम नहीं करेगा। अब समझ लो कि ये ऑब्जेक्टिव के रूप में ही काम करेगा। तो क्या करोगे, अब देखो मेरा भाई कौन है, तो मेरा भाई कौन है, वह क्या है, मेरा भाई है। तो वह कौन सा पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में तो इसका इंग्लिश क्या होते हैं, ही। ये पता रखना कि ये ही जो है वो सिंगुलर है और वह कौन है, मेरा भाई है। अब ही प्रेजेंट है तो क्या लगेगा, इज। अब मैं जब ये सिंगुलर है तो मेरा भाई सिंगुलर में हूं ना, तो ही इज आ माई ब्रदर। ये सही है कि नहीं है, नहीं बिल्कुल गलत है, ये सही बिल्कुल भी नहीं है। क्यों सर, बताता हूं। ही इज माई ब्रदर, ये सही है। क्यों सर, जिसको गिनते हैं उसमें तो ए तो लगाते हैं, हाँ लगाते हैं, लेकिन यहां पे केवल नाउन रहेगा तब। इसके साथ देखो ये आ गया, मतलब कि पजेसिव एडजेक्टिव आ गया। जब भी पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे, जब भी कभी पजेसिव एडजेक्टिव आएंगे तो कभी भी उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं कीजिएगा, ना ए का, ना एन का, ना दा का कीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इस कारण से ये गलत हो गया। तो ए के कारण क्या समझे यहाँ पे कि कभी भी पजेसिव एडजेक्टिव के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। बात समझ में आ रही है कुछ। अब चलिए, ही इज माई ब्रदर, ये सही है। अब आगे देखते हैं, मेरा भाई है, हाय मतलब पर्सन, मेरा भाई कौन है, वे लोग। वे लोग कौन सा पर्सन में, थर्ड पर्सन के प्लूरल में है, तो क्या होंगे, दे के साथ क्या लगेगा, आर। अब मेरा भाई, अब ये तो नहीं लगाएंगे ना, ये लगाएंगे, दे आर ए माई ब्रदर कर देते हैं तो भी गलत हो जाएगा। आ माई ब्रदर तो होगा ही नहीं सर, तो यहां पे क्या करना पड़ेगा, दे आर माई ब्रदर्स, यस लगेगा यहाँ पे। देखो वे लोग, मेरा भाई कौन है, वे लोग क्या है, मेरा भाई है। वे लोग कौन सा पर्सन में, थर्ड पर्सन के प्लूरल में। जब ये प्लूरल है तो आने वाला भी नाउन प्लूरल होगा ना बब्बू, तो इसलिए यहाँ पे यस लग गया। मैंने क्या बताया कि पजेसिव एडजेक्टिव के पहले ए अंदर का प्रयोग नहीं करना, लेकिन यस तो करेंगे ना यदि प्लूरल होगा तो। यहाँ पे सिंगुलर था इसलिए देखो कुछ किए नहीं किए, छोड़ दिए। इस कारण से मेरा ट्रांसलेशन ये सही है। आप यहाँ पे केवल एक ही नहीं सीखिएगा या एक ही कॉपी में नहीं लिखिएगा, दोनों लिखिएगा कि ये ट्रांसलेशन कैसे गलत हुआ, ये ट्रांसलेशन कैसे सही हुआ, ये ट्रांसलेशन कैसे गलत है, ये ट्रांसलेशन कैसे सही है। तभी आप एक परफेक्ट स्टूडेंट बन सकते हो, तभी आप जनरल कंपटीशन को क्रैक कर सकते हो, नहीं तो बिल्कुल भी नहीं होगी। क्योंकि आप सही चीज को जानते हो लेकिन गलत चीज को जानते हो क्या, नहीं। गलत सीखोगे तभी ना वहां पे दिखेगा कि ये गलत है, ऐसे बनेगा। इसलिए गलत पे ज्यादा नजर रखो, क्योंकि एग्जाम में गलत ही आएगा और उस पर नजर रखोगे तभी बनेगा। इसलिए अभी से ही नजर रखना सीख लो, अभी से नजर रखना सीख लो, खासकर इन सारे गलत सेंटेंसों, ये सारे जितने भी सेंटेंस है, जितने भी गलत है उन पे ध्यान दिया करो, तब जाके आपका क्लियर हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। इतने सारे अभी कितने, 1 2 3 4 एग्जाम्पल्स केवल कहां से मिला, माई प्लस नाउन से। इस तरह से सबों का हम लोग को पढ़ना है। चलिए देखते हैं आगे क्या होते हैं। शो अब हम लोग बात करते हैं वी का क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव। आवर प्लस नाउन होते हैं, जिसका हिंदी क्या होते हैं, हमारा, अदरवाइज हम, ओ गॉड, हम लोगों का। अब अपना भी नहीं, अपना जब बताऊंगा टेंस तब। अब यहां पे देखिए, अभी हम लोग सेकंड सीख रहे हैं। अब यहां पे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, हमारा भाई नेता है। चलिए अब यहां पे सेकंड देखते हैं, हम लोगों का भाई नेता है। अब आपसे पूछते हैं कौन सिंगुलर कौन प्लूरल है, जल्दी से कीजिए। हमारा भाई, तो ये आप लोग को पता चलता होगा सिंगुलर है। हम लोगों का भाई लोग, हम लोगों का भाई, हम लोगों लोग लग गया तो इसलिए प्लूरल है, ऐसा सोचते हैं ना। तो देख लीजिए थोड़ा सा थर्ड सेंटेंस क्या करते हैं। सो थर्ड सेंटेंस में क्या होता है, अगर आता है हमारा भाई लोग नेता है, अदरवाइज फोर्थ, हम लोगों का भाई लोग नेता है। अब कुछ समझ में आया कि नहीं आया, समझा करो। भाई के बाद क्या लोग है क्या, नहीं। आप लोग इस लोग को समझकर इसको प्लूरल मान बैठे, नहीं। देखो आवर प्लस नाउन का हिंदी हमारा या तो हम लोगों का होता है, तो इसीलिए ये दोनों सेम है बब्बू, ये दोनों जो है वो सिंगुलर है। देख लो नाउन के बाद लोग होना चाहिए, नाउन के बाद लोग है क्या, नहीं। तो थर्ड सेंटेंस देखो यहाँ पे लिखा हुआ है भाई के बाद लोग, मतलब नाउन के बाद लोग है, नाउन के बाद लोग है, मतलब ये दोनों सिंगुलर, ये दोनों प्लूरल। बात समझ में आई। अब यहाँ पे देखो, जब ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर में हो गया है तो क्या होंगे, आवर
ब्रदर, आवर ब्रदर जब होते हैं, आवर ब्रदर जब होते हैं तो यहाँ पे थर्ड पर्सन सिंगुलर है, प्रेजेंट है तो इज लेगा। जब हमारा भाई एक है तो नेता कितना होगा? एक ना, आ लीडर। अभी बताएं सर पॉजिटिव एडजेक्टिव के सामने ए नहीं लगाते, यहाँ क्यों लगाएं? यहाँ पॉजिटिव एडजेक्टिव दिख रहा है आपको, यहाँ पे पॉजिटिव एडजेक्टिव नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों का इंग्लिश एक ही होगा, आवर ब्रदर इज अ लीडर। अब उसी प्रकार ये दोनों का इंग्लिश एक ही होंगे क्योंकि थर्ड पर्सन के प्लूरल में चला गया है, तो क्या हो जाएंगे? आवर ब्रदर्स आर लीडर्स। ये प्लूरल बन गया, देख लो कि हमारा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो ये हुए। अब फोर्थ हुए। अब फिफ्थ देखिए, यदि आ जाते वाह हम लोगों का भाई है, वाह हम लोगों का भाई है। अदरवाइज सिक्स में आ जाते हैं वे लोग हम लोगों का भाई है। अब देखो यहाँ पे हम लोगों का भाई कौन है बाबू? वाह प्रेजेंट है या पास्ट है? प्रेजेंट। वाह कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है। अब थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है तो क्या होंगे? ही। अब ही के साथ है प्रेजेंट है तो इज लगेगा। हम लोगों का भाई कौन है? वाह है तो यहाँ पे कर सकता हूं ही इज आवर ब्रदर। नहीं, ये गलत हो गया सर, क्योंकि पॉजिटिव एडजेक्टिव आ गया। पॉजिटिव एडजेक्टिव के पास ए लगाते हैं क्या? नहीं। तो सही क्या होगा? ही इज आवर ब्रदर, ये सही है। अब उसी प्रकार वे लोग हम लोगों का भाई कौन है? वे लोग कौन सा पर्सन में है? थर्ड पर्सन के प्लूरल में आर लगेगा। हाँ, अब हम लोगों का है तो क्या हो जाएंगे? आवर। अब भाई ब्रदर्स। अब मन करो अगर सर भाई लोग नहीं लिखा हुआ फिर यस क्यों लगा दिए सर? तो क्वेश्चन करो ना सर, हम लोगों का भाई कौन है? वे लोग क्या है? हम लोगों का भाई है। तो वे लोग तो प्लूरल है ना, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो आने वाला भी प्लूरल होगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सेंटेंस मेरा सही है। तो इस प्रकार से हम लोग वी को भी सीख लिए, कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं। अब चलिए, अब वी हो गए, यहां पे फिर आते हैं यू। अब यू की बात करते हैं थर्ड। अब यू जो है वो देखिए उसका हिंदी होते हैं तुम, या फिर यू का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या हो जाएंगे? योर प्लस नाउन, जिसका हिंदी क्या होंगे? तुम्हारा, अदरवाइज तुम लोगों का। चलिए अब यहां पे देखिए फिर से वैसा एग्जांपल आते हैं। तुम्हारा भाई नेता है, अदरवाइज तुम लोगों का भाई नेता है, अदरवाइज तुम्हारा भाई लोग नेता है, अदरवाइज तुम लोगों का भाई लोग नेता है। आप दोनों देखिए, आप तो समझ ही गए होंगे ना कि तुम्हारा भाई नेता है या फिर तुम लोगों का भाई नेता है, बोथ आर सेम, दोनों सेम है, दोनों सिंगुलर है। देखो भाई के बाद लोग लगा हुआ है, इसका मतलब ये प्लूरल हो गया। तो इसको बना के देखते हैं क्या हो जाएंगे? योर ब्रदर। ये कौन सा पर्सन में? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में इज लगेगा। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो नेता कितना होगा? एक ना, था आ लीडर। चलिए ये सही हुआ। अब यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारा भाई लोग, मतलब ये थर्ड पर्सन के प्लूरल में चला गया, तो योर ब्रदर या ब्रदर्स होंगे बाबू, यस लग जाएंगे। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में क्या लगाते हैं? आर। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला भी नेता भी तो प्लूरल होंगे, तो क्या हो जाएंगे? लीडर्स। तो ये मेरा सही हुआ। अब बात करते हैं हम लोग फिफ्थ में। फिफ्थ की जब बात करते हैं तो देखिए वाह तुम्हारा भाई है, वाह तुम्हारा भाई है। अदरवाइज सिक्स, वे लोग तुम्हारा भाई है। देखो यहां पे ये भी हो सकता था वाह तुम लोगों का भाई है, या तो फिर वाह तुम्हारा भाई है, ये दोनों सेम है बाबू। उसी प्रकार वे लोग तुम्हारा भाई है, या अदरवाइज वे लोग तुम लोगों का भाई है, बोथ आर सेम। देख लो यहाँ पे लिखा हुआ योर प्लस नाउन का हिंदी तुम्हारा या फिर तुम लोगों का, तो कुछ भी हो सकता है, तुम्हारा भी हो सकता है या तो फिर तुम लोगों का भी हो सकता है। अब यहाँ पे बात करते हैं तुम्हारा भाई कौन है बाबू? वाह कौन सा पर्सन? थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो इज लगेगा। हाँ, अब योर ब्रदर कर देते हैं, तो फिर से देख लो ये गलत हो गया। कारण क्या है? ए के कारण। पॉजिटिव एडजेक्टिव में ए लगाते हैं नहीं, तो सही कैसे होंगे? ही इज योर ब्रदर, ये सही है। अब देखो वे लोग तुम्हारा भाई है तो क्या हो जाएंगे?
दे आर योर ब्रदर्स। यस, पुडल हो गया ना, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट पुडल है इसलिए सही हो गया। तो इस प्रकार से हमारा क्या खत्म हो गया, थर्ड तुम्हारा। अब चलते हैं आगे फिर। अब हम लोग आगे बात करते हैं, आगे फोर्थ देखते हैं, जिसमें ही आते हैं। ही का क्या होते हैं, हिज प्लस नाउन, जिसका हिंदी उसका। अब उसका देखते हैं यहां पे क्या होते हैं, तो उसका या क्या होंगे यहां पे। फर्स्ट एग्जांपल, उसका भाई नेता है, या अदरवाइज सेकेंड, उसका भाई लोग नेता है। देखो, हमें यदि सिंगुलर और प्लूरल समझ में आती है तो हम लोग को जरा सा भी टेंशन नहीं है, बन जाएंगे। देखो, नेता कौन है, उसका भाई। उसका भाई कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। तो हिज ब्रदर इज अ लीडर। देखो, बन जाती है ना, ये सही है। अब यहां पे देखते हो, उसका भाई लोग नेता है, तो उसका भाई लोग, भाई में नाउन लग गया, मतलब लोग लग गया, इसका मतलब प्लूरल हो गया। तो हिज ब्रदर्स आर लीडर्स। तो ये सही हो गया। मेरा सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो भी प्लूरल होगा, सब्जेक्ट मेरा सिंगुलर है तो भी सिंगुलर होगा। ये बात को समझना पड़ेगा, और इन सारी चीजों को समझा दिया गया है कॉमन रूल्स में। चलिए अब बात करते हैं थर्ड का। अगर आ जाते वह उसका भाई है, या फिर लिख दो इसमें मैं उसका भाई हूं, मैं उसका भाई हूं। अब देखो, उसका भाई कौन है, मैं, तो आई एम हिज ब्रदर। तो फिर ये गलत हो गया, क्योंकि देखिए पजेसिव एडजेक्टिव के पास क्या लग गया, आर्टिकल। तो क्या हो जाएंगे, आई एम हिज ब्रदर। ये सही हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं इसी तरह से फोर्थ में, वे लोग उसका भाई है। अब उसका भाई कौन है, वे लोग का इंग्लिश क्या होंगे, दे। आर क्यों लगा, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल में है, तो थर्ड पर्सन के प्लूरल में प्रेजेंट में आर लगता है, पास्ट में वर लगता है। अब उसका भाई, तो उसका भाई का हिज ब्रदर या ब्रदर्स। क्यों, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट देखो प्लूरल है, इस कारण से ये सही है। तो ये समझ में आ गई हिज। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा सा शी का। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो आप जरूर बताइएगा। 5 सी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं, हर प्लस नाउन, हिंदी उसकी। अपना जो है हम लोग टेंस में पढ़ेंगे, मैं वहां पे एक्सप्लेन करूंगा कि अपना को कैसे बनाना है। चलिए अब यहां पे देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल। फर्स्ट, उसकी बहन डॉक्टर है, उसकी बहन डॉक्टर है। सेकेंड, उसकी बहनें डॉक्टर है। So I want to say here we need to understand here about singular and plural. This is your plural, this is your singular. If you do not understand that time, I can see that it is not possible to make any translation. So here we can see that singular and plural. This is very important because according to singular, according to plural, we can decide here which types of auxiliary verb I have to use here. If I have singular subject, that time I will use is in present. But if I have plural subject in present, I will use are. So like this we need to understand here from which tense I have to make these all things. Also you need to understand here, if I find singular subject, that time which auxiliary verb is important to use. That time you have to decide here from which tense I am going to make any translation. From I am going to make this translation from present. That time I need the structure of present. You know very well, in present I use is oblique am oblique are. So also we need to understand here singular and plural. So मैं कहना चाहता हूं कि सिंगुलर और प्लूरल को आप ध्यान से समझें। यदि आप सिंगुलर और प्लूरल को ध्यान से नहीं समझते हैं तो आप, यदि सेंटेंस ये प्रेजेंट में है तो एम, आर और इसका प्रयोग सही से नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि उसकी बहन डॉक्टर है, तो क्या हो जाएंगे, हर सिस्टर। यहाँ पे आर का प्रयोग कर देंगे तो क्या इट इज राइट, नो। देन हाउ विल आई नो दैट इट इज रॉन्ग, अकॉर्डिंग टू माई स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक, एम ऑब्लिक, आर प्लस नॉन ऑब्लिक एडजेक्टिव। देखो सब्जेक्ट मांगा, मैंने सब्जेक्ट दिया हर सिस्टर। अब सब्जेक्ट जो है वो कौन सा पर्सन में, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में। तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में आर लगाते हैं क्या, नहीं, तो क्या लगती है, इज। तो इज ना होंगे, दैट्स व्हाई आई टॉल्ड यू ना, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू डोंट नो वेरी वेल, देन यू नीड टू रीड
common rules. If you don't know very well about common rules, that time it is not possible to understand possessive adjective. If you want to learn possessive adjective, then you need to learn at first common rules. So मैं पहले ही बता चुका हूँ common rules को, आप common rules को जाके आप देख सकते हैं। चलिए हम लोग आगे बात करते हैं। तो हमारा जो my हर सिस्टर है वो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो क्या लग जाएंगे एज। हमारी थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर में उसकी बहन है, तो डॉक्टर कौन है, उसकी बहन क्या है, डॉक्टर। उसकी बहन क्या है, डॉक्टर। तो उसकी बहन डॉक्टर है, तो डॉक्टर कितने हुए, उसकी बहन एक ना, तो हर सिस्टर इज अ डॉक्टर। सो दिस इज राइट। सो उसकी बहन ने डॉक्टर है। आप बताओ, हाय मतलब प्रेजेंट, डॉक्टर कौन है, उसकी बहन है, बहन मतलब एक से ज्यादा, कौन सा पर्सन में हो गया, थर्ड पर्सन के प्लूरल में, तो क्या हो जाएंगे, हर सिस्टर्स आर लग जाएंगे, क्योंकि थर्ड पर्सन के प्लूरल में क्या लगाते हैं, आर। अब जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, तो आने वाला भी नाउन क्या होंगे, प्लूरल होंगे। चलिए ये हो गया सही। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग थर्ड की। तो यहाँ पे आ जाते हो, मैं उसकी बहन हूं, अदरवाइज वे लोग उसकी बहनें हैं, वे लोग उसकी बहन है या बहनें हैं, दोनों कह सकते हैं। तो हमारे उसकी बहनें या बहन से फर्क नहीं पड़ता, मुझे सब्जेक्ट से फर्क पड़ता है। होम मतलब प्रेजेंट, उसकी बहन कौन है, माई कौन सा पर्सन में है, तो फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में, तो आई होंगे तो प्रेजेंट है, तो क्या वाज लेंगे, नहीं एम लेंगे, तो आई एम हो जाएंगे। उसके बाद देखिए उसकी बहन कौन है, माई कौन हो, माई कौन सा पर्सन में, फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में। जब फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर में है तो उसकी बहनें कितनी होगी, एक ना, तो आई एम हर सिस्टर होंगे कि नहीं होंगे, नहीं, गलत हो गए। क्या मैंने बताया था कि जब भी पॉजिटिव एडजेक्टिव आएंगे तो आप क्या करेंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ए लगा दिया मैंने तो गलत हो गया। सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको ये करना पड़ेगा, आई एम हर सिस्टर, दिस इज राइट, आई एम हर सिस्टर। सो ओनली फॉर ए, केवल ए के वजह से आपका सेंटेंस गलत हो गया। सो दैट इज राइट। नाउ नेक्स्ट, वे लोग उसकी बहन है, उसकी बहन कौन है, वे लोग कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन के प्लूरल में है, तो आप दे के साथ क्या लगेंगे, आर। जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसकी बहनें क्या सिंगुलर होंगे, नहीं, वो भी प्लूरल होंगे, तो हर सिस्टर या सिस्टर्स यस लगेंगे। तो देखिए ये प्लूरल हो गए, ये भी प्लूरल हो गए, सब्जेक्ट मेरा प्लूरल हो गया। तो आपने क्या सीखा, सब्जेक्ट यदि मेरा प्लूरल है तो आने वाला भी प्लूरल होगा। तो यहाँ पे आपने समझ गया कैसे यूज करना है शो। पॉजिटिव एडजेक्टिव के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए अब यहाँ पे हम लोग ये 5 रूल्स खत्म हो गए। अब आगे बात करते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे 6 में देखेंगे तो वहां पे मिलते हैं दे का क्या होते हैं, पॉजिटिव एडजेक्टिव, देयर प्लस नाउन, जिसका हिंदी क्या होते हैं, उन लोगों का भाई। लुक है, अपना अभी नहीं पढ़ेंगे बाबू, हम अपना आप लोग को टेंस में पढ़ाऊंगा। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? चलिए फर्स्ट हियर, उन लोगों का भाई नेता है। चलिए सेकेंड, उन लोगों का भाई लोग नेता है। अदरवाइज वह उन लोगों का भाई है। अदरवाइज वे लोग, अदरवाइज को हटा दीजिए, राम और श्याम है ना, उन लोगों का भाई है। तो देखिए बना के, तो उन लोगों का भाई नेता है। तो नेता कौन है बाबू, हाई मतलब प्रेजेंट, नेता कौन है, उन लोगों का भाई। उन लोगों का इंग्लिश क्या होते हैं, देयर। इस कारण से आप लोगों को याद करना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएंगे। तो देयर नाउन क्या लेगा, भाई, तो क्या हो जाए, देयर ब्रदर। अब देयर ब्रदर कौन सा पर्सन में हो गया, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में, तो क्या इज लेंगे कि नहीं लेंगे, इज लेंगे। अब थर्ड पर्सन सिंगुलर तो नेता भी थर्ड पर्सन के सिंगुलर चले जाएंगे, आ लीडर। इज दैट क्लियर ना, ये सही है। उसके बाद देखिए उन लोगों का भाई लोग, भाई में लोग लग गया, इसका मतलब प्लूरल बन गया। नेता कौन है बाबू, भाई लोग है, तो क्या हो जाएंगे, देयर ब्रदर्स। यस लग गया इसमें, देखिए
तो यस लग गया तो कहाँ चला गया, ये थर्ड पर्सन के प्लूरल में, तो क्या लगेंगे, आर लगेंगे। उसके बाद जब ये सब्जेक्ट मेरा प्लूरल है, जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला नाउन भी तो प्लूरल होंगे, तो क्या हो जाएंगे, लीडर्स। ये मेरा सही है। उसके बाद देखिए वह उन लोगों का भाई है, वह उन लोगों का भाई है, तो क्या हो जाएंगे, उन लोगों का भाई कौन है, वह कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर में है, तो ही के साथ क्या लगेगा, इज, ही इज उन लोगों का भाई, तो क्या हो जाएंगे, देयर ब्रदर। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा, फिर से पजेसिव एडजेक्टिव आ चुके हैं, तो पजेसिव एडजेक्टिव के पहले क्या आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, नहीं, इस कारण से गलत हो जाती है, एक को हटाइए तब सही हो जाएंगे। चलिए बात करते हैं आगे। राम और श्याम उन लोगों का भाई है, उन लोगों का भाई कौन है बब्बू, राम और श्याम, तो राम एंड श्याम कौन सा पर्सन में है, राम एंड श्याम कौन सा पर्सन में है, थर्ड पर्सन के प्लूरल में, तो क्या लगेगा, आर लगेगा। आर जब लगती है तो यहाँ पे बात कीजिए आप, आने वाला भी प्लूरल होगा, जब मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है तो आने वाला भी प्लूरल होगा। उन लोगों का भाई, तो उन लोगों का इंग्लिश क्या होंगे, देयर होंगे, देयर ब्रदर या ब्रदर्स लगेंगे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए आने वाला नाउन भी क्या होंगे, प्लूरल। दैट्स व्हाई इट इज राइट। चलिए क्लियर हो गया ये। अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा लास्ट जो बच गया, राम। चलिए उसके बात करते हैं। यदि हम लोग बात करते हैं यहाँ पे राम के बारे में 7th में, तो राम क्या है, राम एक खुद सब्जेक्ट है, और ये खुद सब्जेक्ट है, तो राम का यहाँ पे पूछा जाएगा पजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे, पजेसिव एडजेक्टिव क्या होंगे राम का, तो राम्स प्लस नाउन, ये होंगे पजेसिव एडजेक्टिव। डिड यू अंडरस्टैंड ना। चलिए अब यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे कैसे बनेंगे, फर्स्ट एग्जांपल, राम का भाई नेता है ना। सेकेंड, राम का भाई लोग नेता है ना। तो चलिए यहाँ पे राम का भाई लोग नेता है या राम का भाई नेता है, या तो फिर वह राम का भाई है, थर्ड वह राम का भाई है, अदरवाइज फोर्थ वे लोग राम के भाई हैं। ये आपका होमवर्क है एक तरह से, मैं फर्स्ट सेंटेंस बना दे रहा हूं, उसके बाद सेकेंड थर्ड फोर्थ आप खुद से बनाइएगा। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ। तो चलिए राम का भाई नेता है, तो है कौन, नेता कौन है, राम का भाई, तो क्या हो जाएंगे, राम्स ब्रदर। अब देखिए राम का भाई, तो इसे एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया गया, राम्स ब्रदर, तो राम का भाई तो राम्स ब्रदर इज आ लीडर। आप समझ गए हो तो मैं आप लोगों के भरोसे में दो थर्ड एंड फोर्थ, मतलब कि सेकेंड थर्ड फोर्थ, ये आप लोग पे छोड़ता हूं, ये आप लोग बनाएंगे। ये हमारा रहा पजेसिव एडजेक्टिव। अब ये तीनों नहीं बनती है तो आप जरूर से जरूर हमारे कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि सर नहीं बना, तो मैं वहां पे आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे बनाना है शो। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बात करते हैं यहाँ पे। तो आई होप दैट यू विल मेक दिस बिकॉज यू अंडरस्टूड वेरी वेल each and everything. Even you have problem that time you will say that sir I did not make this translation. How will I make sir? Otherwise sir I made this translation sir. Even no I don't know it is right and wrong sir. So please sir explain here sir. So I will explain you if you ask me. Then it is possible to explain here. So may I explain it? So now. Now next thing we have to read here possessive pronoun. So look here what is possessive pronoun. So first क्या होते हैं, आई का possessive pronoun माइन का हिंदी क्या होते हैं, मेरा, या जब भी आएगा अकेले आएगा, जब भी आएगा तो अकेले आएगा, ये किसी के साथ में नहीं आएगा क्योंकि इसको डर नहीं है यार, जब भी आएगा तो सेंटेंस के लास्ट में आएगा बब्बू। तो देखते हैं एग्जांपल फर्स्ट में, जैसे मैं या घर मेरा है, अगर इसके बाद कोई नाउन या घर मेरा है तो क्या हो जाएंगे, दिस हाउस इज माइन। ये माइन क्या हो गया अब वो पजेसिव प्रोनाउन, पीपी पजेसिव प्रोनाउन। तो यह समझ में आ रही है ना कि पजेसिव प्रोनाउन का स्थान कहाँ है सेंटेंस में, लास्ट में। यह हमेशा अकेले आता है क्या, इसके साथ नाउन आता है क्या, नहीं। अगर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे, या मेरा घर है। आप खुद देखिए बना के, तो दिस इज माइन हाउस, अगर लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्या हो जाएंगे, दिस इज माई हाउस,
बिकॉज माई का प्रयोग होगा क्योंकि मेरा के बाद नाउन है। अगर मेरा के बाद नाउन नहीं रहेगा तो माइन का प्रयोग होगी, और मेरा के बाद अगर नाउन आ जाता है तो माइन का प्रयोग नहीं होगी। तो यहाँ पे देखिए मेरा के बाद, यहाँ पे देखिए मेरा के बाद नाउन आया हुआ है, तो इस कारण से माई का प्रयोग होगा, दिस इज माई हाउस, दिस इज राइट। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? वेर यू हैव टू यूज माइन, यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू विल टेल मी। So now this is your possessive pronoun. Now it's over like this. You can make here mine. उसके बाद इसके जगह पे आप कीजिए दूसरा, we का क्या होंगे, ours होंगे, फिर उसी तरह you का क्या होंगे, yours होंगे, उसी प्रकार he का क्या होंगे, his होंगे, उसी प्रकार she का क्या होंगे, hers होंगे। तो इस प्रकार से आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। यदि तकलीफ है थोड़ा सा तो आप बताइएगा मुझे। चलिए नेक्स्ट देखिए, वैसे भी पॉसेसिव प्रोनाउन का हम लोग प्रयोग बहुत कम करते हैं, फिर भी हम लोग को जानना पड़ेगा कि ये थोड़ा मोड़ा जब भी है हम लोग को ग्रामर पूरी तरह से समझना पड़ेगा। यदि आप उधर समझ चुके हैं तो ये बहुत इजी है समझना। देखिए ना, इसी एग्जांपल से बना लीजिएगा, या घर मेरा है, या घर तुम्हारा है, या घर उन लोगों का है, या घर हम लोगों का है, या घर उसकी है, या घर उसका है, या घर राम का है। लाइक दिस यू कैन मेक नाउ, इट्स वेरी इजी। डिड यू अंडरस्टैंड नाउ? सो मैं एक्सप्लेन। अब यहाँ पे एक समझाता हूँ राम का। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो होती है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन मैं आपको टेंस में पढ़ाऊंगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहाँ पढ़ाऊंगा? टेंस में पढ़ाऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है और